Yes. So 13 meridians we have with collaterals we have finished. Now remaining two, one is from P8 to TW1. Second is from H8 to SI1. This complete 15 collaterals, right? Yes. But there is another school that they say there are 16 collaterals. Okay. So they don't consider other schools, those who are having 15 collaterals, they don't consider spleen 21 as a collateral or a lower connecting point. Okay. There is a special relationship with spleen. It has two lower connecting points. Two lower connecting points. One is spleen 4 connects with stomach 40. That is one lower connecting point, and that is all the schools they consider. But lower connecting point spleen has another point, that is spleen 21, where all the meridians they directly indirectly go through, or they get in touch with spleen 21 point. All different schools they don't take it as a lower connecting point, but it has two lower connecting point in general. लेकिन एक स्कूल बोलता है 15 लोअर कनेक्टिंग पॉइंट्स है, वो स्प्लीन 21 को वो लोअर कनेक्टिंग पॉइंट नहीं बोलता है, लेकिन कोलैटरल नहीं बोलता. दैट इज नॉट अ कोलैटरल, बट ऑल अदर पॉइंट्स आर कोलैटरल. मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो है ना बाकी सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक कोलैटरल फॉर्म हो रही है, लेकिन यहाँ से स्प्लीन 21 को टच करके या स्प्लीन 21 के पास से जब मेरिडियन गुजरती है, इसीलिए एक स्कूल उसको ना कोलैटरल नहीं कह रहा है. तो स्प्लीन 21 को मिला के हमारे पास 16 टोटल कोलैटरल्स होती है. और 18 हो गए रवि, 18 हो गए, 18 हो गए. कसम See, P8 to TW1 is 14, Heart 8 to SI1 is 15, Triple Warmer 3 to Pericardium 9 is 16, Spleen नहीं, स्प्लीन 4 अपन कालच केला होता. अच्छा, Spleen core, okay. Yesterday we have completed spleen 4, but I just wanted to show the relation that spleen has a special consideration about lower connecting. It is the only organ which has two lower connections. One is spleen 21 and other one is spleen 4. Spleen 4 connects to stomach 40. Yes. But spleen 21 from here, all the meridians they directly or indirectly connect that point, and then they move to the head, brain, all that. Okay? So that makes it 17 then. 16 होना चाहिए. 16 नहीं, राजू confusion क्या है? TW3 to P9 we didn't do yesterday. हाँ नहीं केलं. So that काल आपण becomes 13च केल्या. 13 केल्या ना. oh, so 14th was pericardium 8 to नाही, triple warmer 1. बघा 13 झालं काय आपल्या कालच्या. 14 झालं P8 to TW1. Correct. 15 झालं Heart 8 to SI1. SI1. 16 triple warmer 3 to P9. बस. So SP21 is not a collateral. नहीं, SP21 is not a collateral, but it is a lower connecting point of the spleen meridian. त्याच्यामध्ये दोन जे लोअर कनेक्टिंग पॉइंट आहे स्प्लीनचे, त्यापैकी स्प्लीन 4 इज कनेक्टिंग टू स्टमक मेरिडियन, दॅट इज स्टमक 40. पण स्प्लीन 21 चा काही एक कनेक्शन पॉइंट नाहीये. नाही, but all meridians pass through this, right? म्हणून ते लोक जे आहे ना, दुसरे लोक ते 15च कोलॅटरल पकडतात. अच्छा, ठीक आहे. 16 नाही पकडत. बरं. पण एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आहे की लोअर कनेक्टिंग जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा आपल्याला त्याला कोलॅटरल पकडायला पाहिजे. म्हणून एक स्कूल म्हणतो की 16 आहे आणि दुसरी स्कूल म्हणते की नाही, आम्ही त्याला लोअर कनेक्टिंग नाही पकडत. बरोबर. एक पॉइंट आहे, त्या पॉइंट मधनं बाकीच्या मेरिडियन जातात, ते कोलॅटरल नाहीये. ओके. 15 कोलॅटरलची गोष्टी करत होतो ना. तर 15 नाही, त्या 16 आहे. स्प्लीन 21 ला पकडून आपण ते 16 कोलॅटरल पकडू शकतो. ठीक आहे. आणि काय आहे की स्प्लीन 21 चा फार एक इम्पॉर्टन्स आहे.
एक तो सगळा मेरिडियन, ऑल मेरिडियन go through spleen 21 internally, not externally, internally. So in many of the cases it is recommended that you needle spleen 21 for anything. Okay. Okay. If you needle spleen 21, which is in the fourth intercostal space, then because every meridian is touching it, so you will be able to work better after needling spleen 21. समजलं का? माझ्याकडे जो अॅक्युग्राफ जो आहे तो अॅक्युग्राफ सुद्धा जनरली मी पाहिलंय की स्प्लीन 21 तर प्रत्येक माणसाला निडल, कारण निडलिंग इन्स्ट्रक्शन पण देतात ते सॉफ्टवेअर. इट ऑल्सो गिव्ह स्प्लीन 21 टू एव्हरीबडी जनरली. Ravi, one funda question. Do you take acugraph of all the patients before starting the needling? See, right now, because I'm not having a good laptop, once my laptop will come, I will start with all the patients. Okay, because normally before and after we should. Before and after, we have to. So that we know whether the progress has happened or not. Yeah, definitely. It gives you all the information about which meridians are in excess, which meridians are in depletion, and which meridians are normal. Yeah. Okay, so those who are in excess, you need to deplete that energy of those meridians. Those who are in depletion, you will have to increase that. Enhance. Also use a certain point which will reduce the energy of those, and it will also give you the point which will increase the energy of those. There should be a balance. There should be a balance. कोई चीज ज्यादा, पैसा ज्यादा है वो तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई मेरिडियन का एनर्जी ज्यादा है वो अच्छा नहीं. It's not good if there's energy. शायद पैसा भी ज्यादा है वो अच्छा नहीं है. Anything that is too much is toxic, right? Yeah. People abuse when they have too much. Yeah. Very right. True. है ना? तो अब इस तरीके से जो है वो हम उसको देखते हैं, और एक्यूग्राफ बहुत एक्यूरेट है, 98% एक्यूरेसी देता है. तो इट रीड्स द एनर्जी ऑफ द पॉइंट्स. देवल, तुमको एक्सपीरियंस है ना, तुमने देखे ना एनर्जी गिनी है ना तुमने एक्यूग्राफ से? क्या एक्यूग्राफ से देखा है? यूज किया है ना हमने एक्यूग्राफ. हाँ. तो अभी यहाँ पे मैं अपने क्लिनिक में, अपना हॉस्पिटल में मेरा नया लैपटॉप आ जाएगा ना, वो कॉन्फ़िगरेशन बताता था कांचन ने, वो लैपटॉप मैं ऑर्डर किया है, आएगा मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से. मैं सारे पेशेंट को चार्ज करके सबका एक्यूग्राफ निकालेंगे बिफोर एंड आफ्टर. मस्त. हाँ, तो they will be also able to see the difference, no? Yes, they will also see the result. और एक प्रिंटेड कॉपी भी उनको दे देने का बिफोर एंड आफ्टर का, ये लो ये तुम्हारा हेल्थ प्रोफाइल. रवि, आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है यार, कोई तो हैमरिंग कर रहा है कुछ. वो बहुत दूर है, बाजू वाले पड़ोस में. क्लियरली सुनाई देता. आपका माइक बहुत पावरफुल है. मैं तो ये इसका माइक यूज कर रहा हूँ. क्या नाम अपने लैपटॉप का? लैपटॉप किसका है? क्योंकि एकदम क्लियरली सुनाई देता है. नहीं, वही तो है ना, दूर के आवाज है ना बड़े क्लियर, और नजदीक की आवाज नहीं सुनाई देती. डिस्टिल पॉइंट सुना दे. उसके लिए फिर बोस के नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स चाहिए, व्हिच इज नॉट वर्थ इट. हाँ, वो नॉइज कैंसलेशन वाला जो कार्यक्रम है बहुत महंगा है, मालूम है. 25-30. वो ब्लूटूथ का जो हेडफोन होते हैं वो भी जो है वो बहुत महंगे होते हैं. नॉइज सेनाइजर का जो है 12,000 का है ना. जर्मन. तो बाजू में काम कर रहा है, उसको बोल भी नहीं सकता मैं कि काम बंद कर दो. नहीं, खिड़की का वो बंद करो ना, शटर. सब बंद है फिर भी सुनाई दे रहा है. वो साउंड प्रूफ नहीं है ना अपना क्लासरूम. उसको लगा होगा सैटरडे छुट्टी है इसलिए वो ठोक पिट कर रहे हैं. हाँ, साउथ अफ्रीका में आप लॉन नहीं काट सकते because it creates noise. लॉन काटा तुमने, तुम डायरेक्ट अंदर, पुलिस आ जाती फट से. ओके, सो अभी तक हमने इंटरनल, मैं क्या अभी वो इंटरनल बात को मैं ना नहीं करने के चक्कर में हूँ. जब मैं
पॉइंट्स पढ़ाऊंगा ना, उसके पहले इंटरनल पाथ करते हुए बाद में मैं एक्सटर्नल पाथ ऑफ द मेरिडियन पे जाऊंगा। हाँ, तो वो जो इंटरनल पाथ हमने करे थे ना, उसका रिवीजन कर रहे थे लास्ट टाइम, उसको मैं क्लासरूम के साथ साथ कवर करूंगा, है ना। तो क्या होगा, अभी मैं उसको अगर करूंगा ना इंटरनल पाथ, तो फिर से हम जब पॉइंट्स करेंगे ना, तो वो जो है वो हमारा फिर से थोड़ा सा ये हो जाएगा। लेकिन पॉइंट्स करते साथ साथ मैं इंटरनल और एक्सटर्नल पाथ करूंगा ना, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने लोअर कनेक्शन पॉइंट तो देखे। ये जो है ना, ये जो पॉइंट्स है जो हम अभी तक मेरिडियंस को हमने एक्सटर्नल मेरिडियन जो पॉइंट्स होते हैं, जो नीडल करने होते हैं, वो करने के पहले क्यों किए हैं? क्योंकि ये आप जब प्रिपेयर्ड रहेंगे, जब हम मेरिडियंस करेंगे और जब आपको मालूम हो अरे ये पॉइंट लोअर कनेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट यॉन सोर्स पॉइंट है, ये पॉइंट क्लेफ्ट पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो जिंगवेल पॉइंट है, ये हर्सी पॉइंट है। अगर ये तरीके से अगर हम चीजों को अगर हम समझेंगे ना, तो हमको जो है निडलिंग के लिए आसानी रहेगी। ये मैंने बहुत कोशिश करी, इसका कुछ सिंप्लीफाइड ये मिलता है क्या, मगर खूब कोशिश करने के बाद भी नहीं। Again. हाँ देवर, There are दो मुझे ना आसान तरीका इसका ना, मैं टोटल याद करने के, मेमोराइजिंग के खिलाफ हूँ। मैं रवि, कोई अच्छा तरीका लेकिन अगर मेमोराइज नहीं करेंगे तो फिर याद कैसे रहेगा? नहीं। देव जैसे ये जो बैकशू पॉइंट्स है ना, उसको आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। ओके। का इतना प्यारा टेक्निक है कि बराबर आपको ना मेमोराइज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो मैं जब हम बैकशू पॉइंट्स करेंगे तो तब मैं समझाऊंगा। ओके। ये सारे पॉइंट, लोअर कनेक्शन पॉइंट, बाद में ये यॉन सोर्स पॉइंट, फिर सी क्लेफ्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स है ना, मैंने बड़ी उसमें से टेक्निक निकालने की कोशिश करा, लेकिन मैं उसके अंदर फेल हो गया कि मैं उसको ना आसान तरीके से कैसे हम उसको ये कर सकते हैं। हाँ, मूव फ्रंट पॉइंट्स भी बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये देखो, जैसे ये लंग वन लंग का है, हाँ? उसके बाद नीचे 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 चले जाओ तो ये 18 लीवर का है, 19 गॉल ब्लैडर का है। ठीक है, कुछ रेन मेरिडियंस के ऊपर है, यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन रेन 3 जो है वो रेन मेरिडियन के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ही है, वो मूवमेंट पॉइंट है। 18 नंबर का पॉइंट जो है, सॉरी 18 लीवर का मूव फ्रंट पॉइंट, वो जब मूव फ्रंट पॉइंट करेंगे तब उसका एक आसान तरीका, मैंने जो मैं जिस तरीके से याद रखता हूँ वैसे हम उसको याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पहले पढ़ा रहा मैं मेरिडियन करने के पहले जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स है ना हमको याद ही करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। हाँ, मगर इतना है कि जैसे लोअर कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो नजदीक पास होते हैं। जब हम मेरिडियंस करेंगे ना तब आपकी समझ में आएगा कि जितने लोअर कनेक्शंस है वो नजदीक होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं कि कोलैटरल्स आर स्मॉलर एंड थिनर देन द मेरिडियन। लेकिन यॉन सोर्स उसको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पॉइंट है, यॉन सोर्स पॉइंट जो है वो डायरेक्टली ऑर्गन से कम्युनिकेट करता है। ऑर्गन जो है वो मेरिडियन से जब कम्युनिकेट करता है तो यॉन सोर्स पॉइंट पे करता है, तो वो कौन सा है ना उसको हमको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लेफ्ट पॉइंट है जहां पर एक्यूमुलेशन और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी होता है, वो हमको याद ही रखना पड़ेगा। जिंगवेल पॉइंट जो है वो भी हमको याद रखने पड़ेंगे, सी पॉइंट जो है वो भी याद रखने पड़ेंगे। तो वो 5 एलिमेंट्स का पार्ट है। लेकिन ये अगर पॉइंट्स हमको याद है, उनके इंडिकेशंस याद है, तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है ट्रीटमेंट करना, और निडलिंग करना आसान हो जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखना आसान हो जाता है। तो ये सारा जो चीज है ना, ये हमको याद रखना पड़ेगा। रवि, एक क्वेश्चन था, कल हमने एक लोअर पॉइंट लिया था, टीबीएल ब्रांच 3 कोन बिलो पटेला, ओके, इट कनेक्ट्स टू ST45।
तो ये पॉइंट का नाम क्या है टीबीएल ब्रांच वाला? क्रमांक 45। हम्म, हाँ, उसका क्या चाइनीज नेम चाहिए? नहीं, then which is the counterpoint of that? मतलब समझ नहीं रहा जी। See, everything has got a counterpoint, right? Like ST41 goes and meets SP1, GB41. Rajiv, don't get confused between Loa connection and the collaterals. Okay, Loa connection points are collateral, but not all collaterals are Loa connecting points. oh, okay, fine. समजलं ना? Yeah, एक ती ब्रांच तिथून जाते, त्यानंतर डॉटसम ऑफ द फूट पासून निघते आणि मधल्या बोटात जाते, correct. Second toe, है ना? not सेकंड middle toe. टोच्या लॅटरल साइडला जाते. बरोबर. ठीक आहे. एक गॉल ब्लॅडरची वरनं गॉल ब्लॅडर 40 वरनं जाते आणि ती लिव्हर 1 ला जाऊन मिळते. ती Okay. कोलॅटरल आहे. हम्म. ठीक आहे. ही Okay. कोलॅटरल आहे. हम्म. लोअर कनेक्टिंग नाही आहे. सो Okay. ऑल लोअर कनेक्टिंग पॉइंट्स आर कोलॅटरल्स, बट नॉट ऑल कोलॅटरल्स आर लोअर कनेक्टिंग पॉइंट्स. झालं? कन्फ्युजन दूर झालं की नाही? Yes. हा, ठीक आहे. तर हे पॉइंट्स आपल्याला करायचे. त्यानंतर आपण तेव्हा कुठं जाऊन आपण मेरिडियन्सवर जाणार. मेरिडियन्सचे आपण सगळे पॉइंट करणार नाही आहोत. आपण जे रुटीनली वापरल्या जातात आपल्या क्लिनिकमध्ये पॉइंट्स तेच आपण करणार आहोत. त्याच्या पलीकडे पण जे स्पेशल पॉइंट असतात, जर त्या पॉइंटमध्ये जर समजा आता लोअर कनेक्टिंग पॉइंट किंवा सोर्स पॉइंट जर कव्हर केले नसतील तर ते आपण दॅट विल बी लर्निंग सेपरेटली. But syllabus says routinely use points. If you teach them the meridians, then it is sufficient. But we'll go beyond that thing and we'll learn also other points which are not routinely used, but they are important points. ठीक है ना? त्यानंतर आपल्याला you have to learn 5 elements thoroughly. 5 elements. On the basis of 5 elements, you can treat patients, all safe points, all below knee and below elbow. Fantastic result you will get, but you need to understand the 5 element theory जो है ना वो understand करना पड़ेगा. अगर 5 element मेरे पास है ना फेस रीडिंग के एक वर्कशॉप में मैंने 5 elements को ना बहुत डिटेल में किया है. तो देखता हूँ मैं इसके अंदर अगर सिर्फ टू लर्न 5 एलिमेंट, अगर नहीं तो आप लोगों को अगर रिक्वेस्ट करनी है तो मुझे करिए. मैं ये वाले ग्रुप पे शायद नहीं डाल पाऊंगा उसको, क्योंकि वो फेस रीडिंग का वर्कशॉप है. लेकिन आप लोग जिसको रिक्वेस्ट करनी है 5 एलिमेंट सीखना है अगर, तो वो वाला मेरा जो सेशन है ना 5 एलिमेंट्स का फेस रीडिंग का, वो बहुत अच्छा है. तो आपके पर्सनल विंडोज पे मैं उसको डाल सकता हूँ ताकि 5 एलिमेंट्स का आपको अच्छा एक इन डेप्थ स्टडी हो. क्योंकि 5 एलिमेंट्स जो है वो हमारे एक्यूपंक्चर में वो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी बिग रोल. Just on the basis of 5 elements we can treat any disease, and 5 element is nothing but the system of treating people through acupuncture. जैसे कोणता मेरिडियन, which meridian is agitating, which meridian is in depletion, and on the basis of 5 elements on the same channel you will be able to enhance the energy of that meridian or that element. And just by doing that, one point, you can enhance the energy of that meridian and can treat a lot of things. है ना? So ये सारी चीजें हम करेंगे. अभी तक तो हमने क्या किया है, वो इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल पाथ छोड़ दीजिए. जब एक्सटर्नल पाथ करेंगे तो इंटरनल पाथ भी साथ में करेंगे. अभी हमने सिर्फ क्या किया है, पिछला वाला जो लेक्चर है ना वही एक्चुअली लेक्चर है, रियल लेक्चर है ना. लास्ट कल का लेक्चर जो है ना वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है. वहां से एक्चुअली एक्यूपंक्चर की स्टार्टिंग हुई है हमारी. वो मेरिडियंस कोलैटरल्स भले आपको नहीं मालूम है ना, तो इतना आपको वो करने की जरूरत नहीं है. आप फिर भी सिर्फ अगर पॉइंट्स भी अगर आप समझ लेते हैं, पॉइंट्स का लोकेशन समझ लेते हैं, उसका एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स क्या है, कितना दूर है, कितना नजदीक है, ये भी आप अगर समझ लेते हैं ना, तो आप जो है वो अपना एक्यूपंक्चर का प्रैक्टिस अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है.
इंटरनल एक्सटर्नल पाथ भी मेरे ख्याल से सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है। डायरेक्ट लोग पॉइंट के ऊपर आते हैं, लंग वन से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। आपको अंदर में क्या हो रहा है ये कभी नहीं समझाएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब निडलिंग हमको जो पॉइंट बाहर से दिख रहा है उसी के ऊपर करने का है, तो अंदर का समझ के क्या करेंगे, बाहर के जो इंडिकेशन है वो पॉइंट के, वो हम पढ़ेंगे और उसको ठीक करेंगे। जैसे LI11 नाम का जो पॉइंट है, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम आता है। तो अब जनरली अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा कि नहीं? हेलो, यस, हाँ, तो उसके लिए तुमको LI का अंदर का पाथ समझने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना? हेलो, बराबर, हाँ नहीं जरूरत है, तो वो नहीं करते, इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये पूरा का पूरा जो है अपना पूरा फुल पेजेस कोर्स है, इसके वजह से हम इंटरनल पाथ उसका क्या है, कौन सा वो मेरिडियन अंदर से जहां से जाती है वहां से वो ऑर्गन को जहां वो टच करती है। इवन जो हमारा लंग मेरिडियन है वो जब ऊपर से नीचे से ऊपर आती है, स्टमक में से जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ द डायफ्राम आल्सो कैन बी ट्रीटेड बाय लंग मेरिडियन। क्यों? क्योंकि लंग मेरिडियन डायफ्राम को टच करती है। तो ये सारा जब इन डेप्थ में हमको मालूम रहता है तब जाके हम एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। इसके लिए ये मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इसीलिए वो इंटरनल पाथ। नहीं तो मैं डायरेक्ट लंग मेरिडियन से स्टार्ट कर सकता था। लंग मेरिडियन का पॉइंट 1 गिने चुने जो है वो 4-6 पॉइंट लेता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरे लार्ज इंटेस्टाइन पे चला जाता था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करने का था। आप लोगों को पूरा एकदम डिटेल में उसको समझ आने के लिए वो मैंने वो सारा विकरण किया। ठीक है, दैट इज ग्रेट रवि, क्योंकि हमें और भी काफी कुछ सीखने को मिला। पॉइंट्स तो सारे बुक्स में आ गए हैं, अगर बुक्स पढ़ेंगे तो वो मिल जाएंगे, लेकिन आप जो बता रहे हो वो बुक्स में नहीं है सब। हाँ, इसीलिए वही मैं ये इसके लिए किया क्योंकि, और इसका नॉलेज होना ना बहुत जरूरी था। अगर हम डायरेक्ट आते ना तो हम सिम्टोमेटिक काम करते। अगर हम डायरेक्ट पॉइंट से काम करेंगे ना, चलो लंग मेरिडियन, लंग 1 to लंग 11 उसके गिने चुने 4 से, वो हम सिम्टोमेटिक काम करते। लेकिन अगर डायफ्राम का प्रॉब्लम है वो भी लंग मेरिडियन से हम ठीक कर सकते हैं, स्टमक का प्रॉब्लम है वो भी हम लंग मेरिडियन से ठीक कर सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक नहीं हो, ये रूट कॉज को देखते हुए वो मेरिडियन के ऊपर हम जब काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएंगे। और सिम्टोमेटिक के लिए अगर काम करेंगे तो सिम्टोमेटिक में ऐसा होता है, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग ट्रीटमेंट द पेशेंट विल फील गुड। द मोमेंट you stop the treatment, after some time it will relapse। वो बोलेगा अरे लास्ट टाइम आपने किया था तब तो अच्छा हो गया था, लेकिन अभी और 2-3 महीने का फिर से बोलेगा, फिर से वही प्रॉब्लम। लेकिन जब आप रूट कॉज को ये करेंगे तब जाके आप उसको सिम्टोमेटिक में आप उसका रूट कॉज को एरेडिकेट करेंगे। हेडेक कितने तरीके का होता है, कितने तरीके के हेडेक होते हैं। ऑसिपिटल हेडेक का अलग ये है, टेम्पोरल हेडेक का अलग है, उसके बाद में ये फ्रंटल पैराइटल हेडेक का अलग पॉइंट्स है। लेकिन अगर हम हेडेक इन जनरल अगर करेंगे तो कुछ दिनों के बाद उसका ये वापस आ जाएगा। ट्रिपल वार्मर 5 जो है ये एक बहुत अच्छा हेडेक का पॉइंट है। LI4 हम लगाते हैं, हेडेक अगर है तो LI4 लगाते हैं। तो ट्रिपल वार्मर 5 का और हेड का क्या संबंध है? लेकिन हेडेक में बहुत अच्छे, किसी भी तरीके के हेडेक में आप ट्रिपल वार्मर 5 और लोकल पॉइंट से ट्रिपल वार्मर 5 लगा के देखो, LI4 लगाओ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं और फिर से रीअकरेंस नहीं है। आई बात समझ में? तो ट्रिपल वार्मर भी जो है वो हेड की तरफ जाता है। गॉल ब्लैडर से हम हेडेक ठीक कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर मेरिडियन है ना। तो ये सारी जो चीजें है, क्योंकि इंटरनल पाथ गॉल ब्लैडर का हेड की तरफ आपके जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये तभी मालूम होगी जब आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पाथ मालूम है ना। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ 12 मेरिडियन देखी, अंदर से जो जा रही है सारी की सारी वो मेरिडियंस है।
और जो बाहर निकलती है, और जो बाहर निकलने के जो पहले का जो ट्रैक होता है वो जो है वो इंटरनली जाता है, वो बाद में जब बाहर निकलता है अंदर वाली मेरिडियन और बाहर वाली मेरिडियन को जब बाहर निकलती है तो वहां जो डाइवर्जन होता है उसको डाइवर्जेंट मेरिडियन कहते हैं। यहाँ से वो डाइवर्ज होके स्किन के ऊपर आती है इंटरनल बॉडी से बाहर की तरफ, है ना। मसल रीजन से गुजरती है तो वो मस्कुलर मेरिडियन कहलाती है। क्यूटेनियस रीजन पे जब पहुंचती है तो वो क्यूटेनियस कहलाती है वही मेरिडियन जो अंदर की बाहर की तरफ आ रही है वही, तो उसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में हमने 15 कोलैटरल्स की बात करी थी। 15 कोलैटरल्स हमने देखी, 15 या 16, मैं 16 कंसिडर करता हूँ, 15 ठीक है। 20 21 को जो है वो मैं बहुत अच्छा ये करता हूँ, क्योंकि जब से मैंने एंजियोग्राफ फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड टू यूज एंजियोग्राफ, I have found that angiograph is giving sprint 21 to almost all patients, and that is why I started to wonder that why this point is so important. Then while studying, I got to know that sprint 21 touches each and every meridian, or each and every meridian touches or goes near the sprint 21 point, and then it moves either further ahead to the head or down to the toes. Okay, so 16 meridians का ये होना अच्छा है। और आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो स्प्लिट 21 अगर देंगे तो इफ यू विल पुट स्प्लिट 21 इट विल नॉट हार्म बट इट विल ओनली गिव गुड रिजल्ट। स्प्लिट 21 तो वो एक अच्छा ये है कि स्प्लिट 21 को हम एक लोअर कनेक्टिंग पॉइंट लेके और उसको कोलैटरल भी बोलेंगे, ठीक है। ठीक, तो अब बोलिए, आप लोग बोलिए, आज का दिन आप लोगों का है। रवि, मुझे आज कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट आई विल आस्क देम नेक्स्ट टाइम। मेरा भी पढ़ना बाकी है लास्ट वीक का पूरा, so I don't have any questions today. Okay, no problem. So I think इतना काफी है। वो बार बार मेरिडियन कोलैटरल में मैं भी बोर हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। So let us say goodbye for the day. We'll meet on Monday 11 o'clock, and from Monday I think we have another person who will be taking your anatomic physiology class. Okay. So I will let you know the timing, and the same link you have to use all the time for diploma acupuncture. Same link you have to use all the time for any lectures related to diploma in acupuncture, whether it's physiotherapy, anatomy, biology, microbiology, whatever. Okay. Okay. So we'll Thank say you so much. Have a good day. Bye bye. Okay, bye. Have a good day. Bye.